کہ ہم نے مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان پڑھا، اور غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ متی رسول ہے کون؟ ہم نے جو یہ حوالہ پڑھا یہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کا کلام ہے، یہ آپ کی منہ مبارک سے ارشاد ہوا ہے، اور مقدس متی رسول اس کو قلم بند کرتے ہیں، مقدس متی رسول اس کو تحریر کرتے ہیں، اور ہم آج اس بات پر غور کریں گے کہ متی رسول جو ہے یہ ہے کون؟ میرے عزیزوں، متی رسول جس نے خداوند یسوع مسیح کے اس کلام کو میرے عزیزوں تحریر کیا، قلم بند فرمایا، یہ میرے عزیزوں خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے خداوند یسوع مسیح کا ایک شاگرد ہے۔ اور میرے عزیزوں آگے بڑھتے ہیں، اور کلام کے اندر مقدس متی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ مسئول کی چوکی پر بیٹھا کرتا تھا، یہ محصول لینے والا تھا، اور یہ مسئول کی چوکی پر بیٹھا تھا، اور میرے خداوند ہمارے زندہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے اس کو مسئول کی چوکی پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور اسے بلایا، اور یہ اپنی مسئول کی چوکی، اپنا کام کاج، اپنا دھندا وہیں پر چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا۔ اور میرے عزیزوں اس کے بائبل مقدس کے اندر 2 نام ہیں، ایک نام اس کو متی کے نام سے لکھا گیا ہے، اور دوسرا نام مقدس متی کو لاوی کے نام سے بائبل مقدس کے اندر تحریر کیا گیا ہے، بائبل مقدس کے اندر لکھا گیا ہے۔ اور یہاں پر بائبل مقدس کے اندر متی کے 2 نام ہیں، ایک متی اور دوسرا لاوی، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہے، اور اس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کی باتوں کو، خداوند یسوع مسیح کے کلام کو کیا کرے؟ تحریر کرے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ مقدس متی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ خداوند یسوع مسیح کے کلام کو کیا کرے؟ تحریر کرے۔ جب ہم نیا عہد نامہ کھولتے ہیں تو میرے عزیزوں سب سے پہلی جو کتاب ہے، سب سے پہلی جو گاسپل ہے، یہ مقدس متی کی انجیل ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ نئے عہد نامے کے شروع میں مقدس متی رسول کی بات پر لکھا گیا، خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان آتا تو ہے، لیکن یہ انجیل مقدس متی کی بات پر لکھا گیا خداوند یسوع مسیح کا کلام جو ہے یہ پہلی انجیل نہیں ہے۔ بائبل مقدس کے اندر 4 مصنفین خدا کے کلام کو تحریر کرتے ہیں۔ نئے عہد نامے کی پہلی 4 کتابیں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کا کلام جو ہے یہ 4 لوگ تحریر کرتے ہوئے ہم کو دکھائی دیتے ہیں۔ پہلا مقدس متی، مقدس مرکز، مقدس لوکا اور مقدس یوحنا۔ ان 4 اناجیل میں سے جو سب سے پہلی انجیل لکھی گئی وہ مقدس مرکز رسول کی انجیل ہے۔ 4 اناجیل میں سب سے پہلے جو انجیل لکھی گئی وہ کس کی انجیل ہے؟ مقدس مرکز رسول کا، مقدس مرکز رسول کی انجیل ان 4 اناجیل میں سے سب سے پہلے لکھی گئی۔ اور میرے عزیزوں مقدس مرکز رسول جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد نہیں ہے۔ مقدس مرکز رسول جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد نہیں ہے، اس نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھ کر کھایا پیا نہیں ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلا پھرا نہیں ہے، اس نے معجزات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس نے خداوند یسوع مسیح کے منہ سے اس کے کلام کو نہیں سنا، لیکن میرے عزیزوں یہ خدا کا کلام تحریر کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے منہ کی باتوں کو کیا کرتا ہے؟ تحریر کرتا ہے۔ آؤ کیسے؟ کلام کہ یہ 4 مصنفین جو نئے عہد نامے کی پہلی 4 کتابوں کو تحریر کر رہے ہیں روح کی ہدایت سے تحریر کر رہے ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری کی پوری بائبل مقدس، پورا کا پورا خدا کا کلام اور روح القدس کی ہدایت کے مطابق تحریر کیا گیا ہے، اور نئے عہد نامے کی 4 مصنفین بھی روح کی ہدایت سے قلم اٹھاتے اور خداوند یسوع مسیح کے کلام کو کیا کرتے ہیں؟ تحریر کرتے ہیں۔ 4 انجیل میں سے سب سے پہلی کون سی انجیل لکھی گئی؟ مرکز کی، مقدس مرکز رسول کی انجیل لکھی۔ آگے بڑھتے ہیں میرے عزیزوں، ہم نے آج خدا کے کلام سے پڑھا، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں
या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती है और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के क्या हो, मोहताज हो। मेरे अजीजों, मुकद्दस मत्ती खुदा के कलाम को तहरीर करता है, कहता है कि कोई भी शख्स, कोई भी इंसान, कोई भी शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत रखेगा, एक से अदावत रखेगा और दूसरे से क्या करेगा, मोहब्बत रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। एक शख्स कभी भी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। एक से मिला रहेगा और दूसरे से नफरत करेगा, एक को अच्छा समझेगा और दूसरे को क्या समझेगा, बुरा समझेगा। और मेरे अजीजों, इसी तरह यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम भी खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करो, अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की के क्या पहनेंगे, और क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। यीशु मसीह कहते हैं डोंट वरी, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और खुदा यीशु मसीह सवाल लोगों के सामने रखते हैं कि क्या आपकी जो कलाम के अंदर लिखा, क्या जान जो है वो खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं है। देखो हवा के परिंदों की तरफ गौर करो, हवा के परिंदों को देखो, ये ना बोते हैं ना काटते हैं। हवा के परिंदों की तरफ देखो, ये ना बोते हैं ना काटते हैं, ना कोठियों में माल जमा करते हैं, ना अपने खजानों को बैंकों में इकट्ठा करते हैं, ना अपने खजानों को कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी खुदा इनको खिलाता है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाइए। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अपनी जान की फिक्र, सॉरी कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह फरमाते हैं कि जान की फिक्र ना करना, जान की फिक्र ना करना, क्या हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। बदन की फिक्र ना करो कि हम क्या पहनेंगे, हम क्या पहनेंगे। परिंदों को देखो, ये ना बोलते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी खुदा इनको क्या करता है, मुहैया करता है। और मेरे अजीजों, कलाम में बड़ा ही खूबसूरत आप यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम इनसे ज्यादा कदर नहीं रखते, क्या तुम इनसे ज्यादा कदर नहीं रखते। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। और कहते यीशु मसीह फरमाते हैं, और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो, कपड़ों के लिए क्यों फिक्र करते हो कि हम क्या पहनेंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि पोशाक, कपड़ों के लिए क्यों फिक्र करते हो कि हम क्या पहनेंगे। तुम जंगली शोषण को देखो, जंगली दरख्तों को देखो, जंगली शोषण को देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते और ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनकी मानद मुलव्वस ना था। हालेलुया। यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम जंगली शोषण को देखो, जंगली शोषण को देखो, जंगल के दरख्तों को देखो और गौर करो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं ना मेहनत करते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान जो अपने दौर का बादशाह था, जो अपने दौर का हाकिम था, और वो एक शाही चोगा पहनता था, एक शाही पोशाक पहनता था, फिर भी उन जंगली शोषणों से अच्छी उसकी पोशाक ना थी। आगे बढ़ते हैं, कलाम के अंदर लिखा है कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलव्वस ना था। बस जब खुदा
और कल तंदूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम एतकाद तुमको क्यों करना पहनाएगा। ऐ कम ईमान वालों, जब खुदा जंगली दरख्तों को ऐसी खूबसूरत पोशाक पहनाता है कि तुम इंसान जब उसको देखता है तो हैरान हो जाता है। बादशाह वक्त का हाकिम सुलेमान बादशाह वक्त का हाकिम होते हुए भी उतनी अच्छी पोशाक से मुलव्वस न था जितना खुदा ने जंगली दरख्तों को, जंगली शोषण को पोशाक पहनाई। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह कहते हैं ऐ कम एतकाद, जब जंगली दरख्तों को उसने अच्छी पोशाक पहनाई है तो वो तुमको क्यों करना पहनाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि फिक्र ना करो, डोंट वरी। यीशु मसीह कहते हैं इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि फिक्र ना करो। ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर में रहती हैं, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर में रहती है। और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले, यीशु मसीह ने यहाँ पर हल बता दिया है, कहते हैं कि बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी राष्ट्रबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। हालेलुया। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम हमको सिखाता है कि तुम लोग फिक्र ना करो कि तुम लोग क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे, बल्कि खुदा कहता है कि तुम आसमान की बादशाही की और खुदा की रास्तबाजी की तलाश करो और ये दुनिया की चीजें मैं तुमको दे दूंगा। ये दुनिया की चीजें मैं तुमको इनाम में दे दूंगा। और जब हम खुदावंत की गुर्बत को मांगते हैं, खुदा की गुर्बत के लिए मेरे अजीजों खुदावंत के हुजूर झुकते हैं, तो खुदा अपनी गुर्बत के साथ साथ हमारी फिक्र भी करता है। इससे बड़ी क्या फिक्र करे खुदा हमारी कि उसने हमारे लिए अपनी जान का फिदिया सलीब पर दे दिया। कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता, लेकिन वाहिद हस्ती खुदावंद यीशु मसीह है जिसने सलीब पर हमारे गुनाहों की माफी के लिए अपनी जान का फिदिया दिया है। और ये जान का फिदिया खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए इसलिए दिया कि हम अब्लीस की गिरफ्त के अंदर थे, हम पर शैतान का मुकम्मल कंट्रोल था, शैतान ने हमको पकड़ा हुआ था। और मेरे अजीजों, हमें शैतान ने अपनी गिरफ्त के अंदर रखा हुआ था, तो जरूरत थी कि हम शैतान से आजाद किए जाए। और खुदा ने ही हमारी फिक्र की और हमें क्या किया, अब्लीस से आजाद करवा दिया। और अब बाइबल के अंदर लिखा है कि तुम खरीद लिए गए हो उस बेशुमार और कीमती खून के वसीला से, जो यीशु मसीह के पाक बदन से, पाक खूबसूरत बदन से, उसके सरे कद से, उसके पाक और खूबसूरत कदमों से और उसकी जिस्म से पा है। वो खून तुम्हारी कीमत है और तुम उस खून से खरीद लिए गए हो। अब तुम तुम्हारे नहीं रहे बल्कि मसीह के हो, और तुम्हारा दिल, तुम्हारा बदन उसकी हैकल है। और जो कोई इस हैकल को बर्बाद करेगा, खुदा उसे बर्बाद करेगा। हालेलुया। खुदा हमारी फिक्र करता है, उसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और अब अब्लीस का हमारे ऊपर इख्तियार नहीं है। हमको यीशु मसीह ने फरमा दिया है कि जाओ और सांपों और बिच्छुओं के सर को कुचलो और अब्लीस की सारी ताकत और कुव्वत पर क्या करो, गालिब आओ। और जो इख्तियार बाप ने मुझे दिया है वो इख्तियार मैं तुम्हें देता हूं। और यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए।